Hello all, here I Komal Sharma welcomes you all at our Gargi classes. Today I am going to discuss all about the critical analysis of the poem The Relic, which is written by John Donne. Yesterday I have taught all about the text explanation of this particular poem. So, to get an idea all about the explanation and about the meaning and about the detailed uh, meaning of this particular poem, The Relic, you may go to the channel's playlist and there you'll get to find out the particular playlist for UPSC English optional. There you'll find the particular video which would be relevant to this particular poem, that is The Relic by John Donne. Alright, so today, apart from discussing the text of the poem, as I have already discussed about, today I am going to detail you all about the critical analysis of this particular poem. What kind of satire are there? What kind of technical devices have been used by the poet? And what kind of rhyme schemes are there into this particular poem? So, before moving ahead with the particular critical analysis of the poem, here I would like to define the meaning of the word relic. What does it mean by relic? So, here is the definition or the meaning of the word a relic. A relic means a thing belonging to a person who is believed to possess saintly or magical power, preserved for its religious or magical value. The poem is a pure product of fancy. सो हियर होप यू गेट टू नो कि रैलक का मतलब एक्चुअली होता क्या है. रैलक एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसे रिमेन्स होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करते हैं और उनका पोजेशन जो होता है उस पर्टिकुलर बिलोंगिंग का या उस रिमेन का जो पोजेशन होता है वो उसमें ऐसा बिलीफ माना जाता है दैट दैट पर्टिकुलर पोजेशन और बिलोंगिंग इज एक्चुअली सेंटली और मैजिकल पावर प्रिजर्व्ड इनटू दैट. All right, and there are religious or magical values are preserved into that belonging. For example, जैसे उसने एक एग्जाम्पल दिया था पोइट ने कि जब भी कोई ग्रेव डिगर होगा और वो मेरी ग्रेव को ब्रॉकअप करेगा ज्ञान, तो वहाँ पे मेरे रिस्ट के चारों तरफ एक हेयर लॉक मिलेगा. तो वो जो हेयर लॉक है वो ही रैलक है, वो ही वो रिमेनिंग है, वो ही वो बिलोंगिंग है जो कि ये प्रूव करेगी इनटू दी फ्यूचर कि ये किसी पर्टिकुलर ऐसे सेंट या फिर किसी मैजिकल पावर से बिलोंग करती है. तो कोई भी रिमेन्स, कोई भी बिलोंगिंग जिसमें ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीफ होता है कि उस पर्टिकुलर पोजेशन में या तो कोई रिलीजियस मैजिकल पावर होता है, सेंटली पावर होता है. ठीक है, so this is all about the meaning of the word relic. All right then, so here I am moving with the particular analysis, the critical analysis of the poem. So first of all, we will study all about this satire. What kind of satires? What kind of satires have been used by the poet John Donne into his poem, that is The Relic. So The Relic is a poem in which Donne makes fun of the superstitions attached to the purely platonic ideas of love. The Relic is a poem in which Donne makes fun of the superstitions attached to the purely platonic ideas of love. प्लेटोनिक आइडियाज़ ऑफ लव, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था व्हाइल आई वाज डिस्कसिंग ऑल अबाउट द पोएम टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बैड. तो प्लेटोनिक लव वही होता है जहाँ पे फिज़िकल स्फेयर्स के अलावा, फिज़िकल स्फेयर्स को छोड़ के जब दो सोल्स एक दूसरे के साथ यूनाइट होती है लविंगली, तो उसी को प्लेटोनिक लव होता है. तो अपार्ट फ्रॉम बॉडी जब एक डेथ होती है दो लवर्स की, ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू प्लेटोनिक आइडिया ऑफ लव कि जब दो लवर्स की डेथ होती है, लवर और बिलवेड की, तो उनके जो सोल्स हैं वो फिज़िकल स्फेयर्स को छोड़ के सोलली वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है. तो वो ही आइडिया यहाँ पे डाला गया है और इसको एज अ सुपरस्टिशन प्रेजेंट भी किया है
पोइट ने, और वो इस चीज़ का कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पोइम में मजाक भी उड़ा रहा है, ठीक है। तो एक सटायर किया गया है अपॉन द प्लेटोनिक आइडियाज़ ऑफ लव, ऑल राइट देन, और उन सुपरस्टिशंस पे जो कि इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, ऑल राइट। सो he satirizes further the society's blind prohibition against the attachment between the sexes. The persona addresses his beloved with whom he has not yet allowed to be intimate. और वो सोसाइटी के इस ब्लाइंड फिनोमेना, ब्लाइंड प्रोहिबिशन अगेंस्ट हैविंग सेक्स बिफोर द मैरिज, इस ये जो ब्लाइंड फेथ है ऑफ द पीपल, तो इसके अगेंस्ट में वो एक आवाज़ उठाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, और अपने बिलवड को एड्रेस करता है जिससे वो अभी तक इंटीमेट नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दी सोसाइटीज ब्लाइंड प्रोहिबिशन। तो इस चीज़ पे भी वो सटायर करता है, ऑल राइट। सो हियर वी हैव टू सटायर्स अर्लियर, the satire upon the superstitions, upon the purely platonic ideas of love, and secondly upon the society's blind prohibition against the attachment of two people, two people together, all right. So they, while the society prohibited the two persons, the two lovers to have a physical intimacy before marriage or before getting into the unity, सो इस चीज़ पे भी वो क्या करता है, सटायर करता है, ऑल राइट। नेक्स्ट सटायर वी हैव द पोइम एज अ सटायर ऑन द सुपरस्टिशियस आइडिया ऑफ लव एंड मैजिक रादर देन बिलीविंग इन द एक्चुअल कॉन्टैक्ट एंड अटैचमेंट बिटवीन मैन एंड वुमेन। और जो पोइट है वो इस चीज़ पे भी सटायर करता है कि जो सोसाइटी है वो लव और मैजिक पे ज़्यादा बिलीव करती है, द आइडियाज़ ऑफ लव एंड मैजिक पे, rather than believing in the actual contact and attachment between man and woman। तो actual जो attachment होता है, जो physical attachment होता है, उसके अलावा उसके अगेंस्ट में या फिर उसके जस्ट ऑपोजिट जो सोसाइटी किस में बिलीव करती है, द मैजिक एंड द लव। तो इस चीज़ पे सटायर जो कि मैंने अभी मेंशन किया था इन द अर्लियर स्लाइड, ऑल राइट। So the relic of the title refers to the hair and bone that people will declare relic out of the superstitious belief। अब वो सुपरस्टिशियस जो बिलीफ होता है लोगों के, उस पर भी वो अटैक करता है, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था। तो वो जो रैलिक था, रैलिक जो टाइटल है पोएम का, उसमें रैलिक क्या है, द हेयर अराउंड द बोन, द हेयर अराउंड द बोन, और लोग उसको क्या डिक्लेयर कर देते हैं इन फ्यूचर as a saint or some kind of thing or belongings which belong to some saint or which possess some magical power into that। तो ये चीज़ डिक्लेयर होती है इन फ्यूचर, डिक्लेयर होगी इन फ्यूचर, ये इमेजिनेशन होता है। तो इस चीज़ पे भी सटायर है कि पीपल, लोग जो है वो एक्चुअल चीज़ों पे बिलीव करने के बजाय उन सारी चीज़ों पे बिलीव करते हैं जो एग्जैक्टली डू नॉट एग्जिस्ट। Okay, so now we will study all about the technical devices, what kind of devices are used into this poem. So what are the devices? In the very first stanza we will study the first stanza's devices first of all, what kind of devices has been used. So he makes use of metaphysical conceit and compares grave with women who like to share bed with more than one man। तो सबसे पहला जो मेटाफिजिकल कंसीट यूज़ किया है, जो टेक्निकल डिवाइस यूज़ की गई थी इन द वेरी फर्स्ट स्टांजा, वो मेटाफिजिकल कंसीट यूज़ किया गया था पोइट ने। सो वो कंपेयर करता है एक ग्रेव को एक ऐसी औरत के साथ कंपेयर करता है हु स्लीप्स मोर देन वन मैन, जो कि एक से ज़्यादा लोगों से क्या करती है, इंटीमेट होती है, ऑल राइट। तो वो ग्रेव को कंपेयर करता है विद द वुमन हु लाइक्स टू शेयर बेड विद मोर देन वन वुमन। सो ग्रेव इज लाइक द वुमन हु शेयर्स द बेड विद मोर देन वन मैन, all right। So kind of we can take it as the profession of prostitution, all right। So prostitute used to sleep more than one man, like her the grave also contains more than one man's body into that, all right। तो ये चीज़ यहाँ पे मेटाफिजिकल कंसीट के तौर पे रिप्रेजेंट की गई है। मेटाफिजिकल कंसीट यहाँ पे यूज़ हुआ है जहाँ पॉइंट कंपेयर कर रहा है ग्रेव को वुमेन के साथ, ऑल राइट। ये फर्स्ट टेक्निकल डिवाइस इनटू द वेरी फर्स्ट स्टांजा। सेकंड,
The tone is hyperbolic and contemplative, where he thinks that the hair bracelet that he is wearing would be fresh even when his body would have decomposed and he would have been left only with bones. तो यहाँ पे ये हाइपरबोलिक है, यहाँ पे एक ऐसे हाइपरबोली यूज़ की है इनटू द वेरी फर्स्ट आंजा. हाइपरबोली कहाँ यूज़ की है, जहाँ पे वो ये डिफाइन करता है कि जो हेयर लॉक उसके रिस्ट के चारों तरफ रैप्ड अप है ना, वो बिल्कुल फ्रेश होगा इनटू द फ्यूचर. अदरवाइज उसकी जो सारी बॉडी है वो डीकम्पोज हो चुकी है. सो अनलाइक हिज डीकम्पोज बॉडी, उसका जो हेयर लॉक है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा इनटू द फ्यूचर आफ्टर दी सेंचुरीज इवन. तो यहाँ पे क्या है, ये हाइपरबोलिक है, थोड़ा अनइमेजिनेबल अनएक्सेप्टेबल चीज़ है कि पूरी बॉडी डीकम्पोज हो गई है और जो वो हेयर लॉक है वो बिल्कुल फ्रेश है. तो ये चीज़ क्या है, अनएक्सेप्टेबल है कहीं ना कहीं. तो ये हाइपरबोलिक है, हाइपरबोली यहाँ पे यूज़ की गई है. ऑलराइट देन. Okay, so next technical devices we have in the very first stanza is he makes the use of metonymy and calls the day of judgment a busy day. वो यहाँ पे मेटोनमी भी यूज़ करते हैं, जो जॉन डन है यहाँ पे मेटोनमी का यूज़ करते हैं. तो मेटोनमी कहाँ पे, जहाँ पे वो डे ऑफ जजमेंट को क्या बताता है, बिजी डे. डे ऑफ जजमेंट स्पेसिफिकली इन क्रिश्चियंस बिलीफ में ये माना जाता है कि जब कोई इंसान की डेथ होती है, जब किसी इंसान की डेथ होती है तो उसका जो जजमेंट होता है एक पर्टिकुलर डे पे डिसाइड होता है, जहाँ पे सारी सोल्स को लाइन में लगाया जाता है और वन बाय वन उनके डीड्स के अकॉर्डिंगली उन्हें हेवन या हेल को हेवन या हेल में भेजा जाता है. अपने हिंदू माइथोलॉजी में भी ये चीज़ दी गई है कि एक सोल का जो जजमेंट होता है वो उसकी डेथ के बाद होता है और उसे उसी अकॉर्डिंगली जो भी फर्दर जन्म है या स्वर्ग है, नर्क है, जो भी चीज़ें मिलती है उसी के अकॉर्डिंग मिलती है. तो सेम इन द क्रिश्चियंस बिलीव्स, और इसी डे ऑफ जजमेंट को एक मेटोनमी के रूप में प्रेजेंट किया है, दैट इज़ बिजी डे. तो डे ऑफ जजमेंट को बिजी डे के रूप में प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे. ठीक है, तो मेटोनमी का यूज़ है यहाँ पे. जैसे यहाँ पे लाइन भी है, टू मेक देयर सॉल्स एट द लास्ट बिजी डे. ठीक है. ही हैज़ मेक रिपीटेड यूज़ ऑफ एलिट्रेशन इन द फर्स्ट स्टांजा. फर्स्ट स्टांजा में एलिट्रेशन भी है, कहाँ पे है, and think that there a loving couple lies. We thought that this device might be some way. तो एलिट्रेशन का मतलब होप आप पीपल समझते होंगे कि एलिट्रेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है. एलिट्रेशन होता है द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होना, या तो कॉन्टिन्यू रिपीटेशन होता है या फिर हम कह सकते हैं एक वर्ड छोड़ के दूसरा वर्ड का रिपीटेशन. ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन ही एलिट्रेशन होता है. तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेटिव है. थिंक दैट देयर, थॉट दैट दिस, थिंक दैट देयर, थॉट दैट दिस. तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया. ऑलराइट. नेक्स्ट टेक्निकल डिवाइस वी हैव इन द सेकेंड स्टांजा. अब तक फर्स्ट स्टांजा में जो जो डिवाइसेस थी मैंने बता दी है. मेटोनमी का यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन का भी यूज़ किया गया है, और जो भी बेसिक थिंग्स हैं, मेटाफिजिकल कंसीट है, हाइपरबोली है. तो ये चार जो बेसिक टेक्निकल डिवाइसेस है वो फर्स्ट स्टांजा में यूज़ की गई है. अब देखते हैं सेकेंड स्टांजा में कौन कौन सी डिवाइसेस है विच हैज़ बीन यूज्ड. So the second stanza contains a reference to Mary Magdalene, the mother of Jesus. The poet uses a metaphor for his beloved and says that she would be Mary Magdalene for a people if they be misdevoted. So second stanza में सबसे पहले जो टेक्निकल डिवाइस यूज़ की गई थी वो है मेटाफर. मेटाफर का मतलब आप सबको पता होगा, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज. बिना किसी वर्ड के, जैसे लाइक और एज, जब भी हम किसी दो चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा हम या तो लाइक का यूज़ करते हैं या एज का यूज़ करते हैं. बट मेटाफर में कंपैरिजन तो होता है, बट वहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है. आई एम सो सॉरी. सो द सेकेंड स्टैंजा में जो मेटाफर यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है जब वो अपनी बिलवड का कंपैरिजन मैरी मैगडलन के साथ करता है. मैरी मैगडलन के साथ इन विच सेंस, जब फ्यूचर में उनकी ग्रेव्स को ब्रॉकअप किया जाएगा एंड द ग्रेव डिगर विल फाइंड देयर ग्रेव्स देयर द ब्रासलेट ऑफ हेयर अराउंड द poets or lovers' wrist, and then the people, the king and the bishop, will announce them
announce both of them, the lovers, as saints, as a magic, the relic, that that particular bracelet will be defined or will be taken as a relic, and which possesses some magical or loving power. So whenever this will be happen, his beloved will be worshipped as Mary Magdalene, who is the mother of Jesus Christ. all right, तो उसने अपनी बिलवड का कंपैरिजन मैरी मैगडलन के रूप में किया है, और उसने कहा है कि जब भी फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा और हमें सेंट डिक्लेयर किया जाएगा, तब तुम्हें मैरी मैगडलन की जैसे पूजा जाएगा. ऑलराइट, you will be worshipped like Mary Magdalene. All right, तो सेकेंड स्टैंजा में फर्स्ट जो टेक्निकल डिवाइस है दैट इज मेटाफोर. All right then, next he starts the second stanza. He starts the second stanza with a conditional clause. और वो जो second stanza का यूज़ करता है conditional clause के साथ करता है. If all this that he is fencing takes place at a time miss devotion, then they would be remembered and revered as a saint and miraculous people. वो सेकेंड स्टांजा का शुरुआत में सबसे पहले कंडीशनल क्लॉज का यूज़ करता है, और वो बोलता है इफ़ ऑल दिस दैट इज़ फैंसिंग टेक्स प्लेस, अगर ये सारी इमेजिनेशन हो जाएगी ट्रू, जो भी अभी मेरा फैंसी है वो ट्रू हो जाएगा, तो तुम्हें एज अ मैरी मैगडलन पूजा जाएगा. And when this fancy will take place at a time of misdevotion, then they would be remembered and revered as a saint and miraculous people. So यहाँ पे जो सेकेंड स्टांजा का जो शुरुआत होता है, द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड स्टांजा, वो किसके साथ होती है? विद द कंडीशनल क्लोज के साथ, इफ़ का यूज़ करते हैं. ठीक है, ही कॉल्स themselves as the harmless lovers because the love is platonic. और वो अपने आप को, अपनी खुद को एज अ लवर और अपनी बिलवड को हार्मलेस लवर्स के रूप में डिक्लेयर करता है, क्योंकि यहाँ पे उसने द आइडिया ऑफ प्लेटोनिक लव यूज़ किया है. ऑल राइट, द लवर्स हु डू नॉट हार्म अदर्स, एक ऐसे लवर्स जो दूसरे को हार्म नहीं करते हैं. ऑल राइट, और जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हैं रैदर देन फिजिकली, क्योंकि फिजिकली कनेक्टिविटी उन्हें सोसाइटी अलाउड नहीं करती है. ऑल राइट, The third stanza is set to conclude the plot. अब थर्ड स्टांजा में टेक्निकल डिवाइसेस है. थर्ड स्टांजा बेसिकली जो अर्ली टू स्टांजाज हैं उनका कंक्लूजन है. द स्टांजा इज अनदर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लेटोनिक लव. ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लेटोनिक लव. Alphabet A is omitted from the word loved in two verses. टू वर्सेस यहाँ पे ऐसी है, दो वर्सेस यहाँ पे इस पॉइंट में पर्टिकुलरली ऐसी है जहाँ पे ई जो अल्फ़ाबेट है उसको ओमिट किया गया, उसको यूज़ नहीं किया गया है. ठीक है, मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट प्रोनाउंसिएशन में आता है. ऑल राइट, फर्स्ट वी लव्ड वेल एंड फेथफुली येट न्यू नॉट व्हाट वी लव्ड नॉर बाय. तो यहाँ पे भी ई क्या है? ओमिटेड है, और यहाँ पे भी ई ओमिटेड है. इन बोथ द वर्सेस, in the particular word loved, the word e is omitted. All right, so this is all about our third stanza's two technical devices. All right, for the technical devices, poet makes the use of rhetoric device. Rhetoric device का भी इसमें use करता है poet. He repeats the word we consistently throughout the stanza, और जो word है we उसका consistent use करता है. For example, first we loved well and faithfully, yet knew not what we loved nor why. Difference of sex no more were we knew than our guardian angels do. Coming and going we perchance might kiss, but not between those meals. So here he used the word we repetitively. We word का use continue किया जा रहा है into the very third stanza. नेक्स्ट ऑन डन मेक्स द यूज़ ऑफ मेटोनमी. यहाँ पे भी मेटोनमी का उसने यूज़ किया गया. वैन यूजेस द वर्ड मील्स एंड सील्स फॉर द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन्स के सेक्स ऑर्गन्स को डिफाइन करने के लिए उसने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड्स विच आर रेलेवेंट टू सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन्स, उसने क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं यहाँ पे? मील्स एंड सील्स. तो मील्स एंड सील्स क्या है? यहाँ पे मेटोनमी है. फर्स्ट स्टांजा में भी मेटोनमी का यूज़ किया गया था.
He makes the use of diacop. He makes the use of diacop to emphasize his point by repeating the word all in the second last stanza of the poem. Lastly उसने second last stanza of the poem में उसने क्या किया है, rapid use किया है the word all measures and all language I should pass. All measures and all language I should pass. So what does this mean? What does this mean? I'm so sorry. What does this mean? Diacopa already. So this is what we call the diacopa, जहाँ पे उसने all word का use किया है in the second last stanza of the poem. Okay then, so today we have the last but the not the least technical device which are used by the poet John Donne into his poem Thoralic. So इसमें जो technical device में जो rhyme scheme है वो कौन सी use की गई है poem में? The poem is written in 3 stanza, each consisting of 11 lines with a rhyme scheme A, B, B, C, D, D, C, E. तो ये पर्टिकुलर राइम स्कीम है जहाँ पे जो पोइम है वो 3 स्टांजाज में डिवाइडेड है. हर स्टांजा की में जो लाइंस है वो 11 लाइंस है और उन 11 लाइंस की जो राइमिंग है वो कुछ इस तरीके से ए, बी, सी, डी, सी, ई. तो जब आप पोइट्री को दोबारा रीड करोगे देन यू विल गेट टू नो द राइम स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर पोइम. Alright then, so thank you so much for watching or for giving minutes to this particular video. If you have any kind of problem, query, doubt in your mind related to this particular poem, that is The Relic by John Donne, then you could directly comment us below and or email us too. Alright then, and don't forget to subscribe the channel. Do like the video whatever you have been coming through, and do not forget to press the bell icon to get the notification of our each video. So thank you so very much for watching the video, for giving minutes to us.